Good morning, everyone. I am Sanjay Kumar Singh from Sagar Institute of Science and Technology, Gandhi Nagar, Bhopal. In this lecture number 5 of second unit, here we will discuss about the derivation of simple bending and numerical based on bending. Say here फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये डेरिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऑलवेज एग्जाम में आते रहता है. तो derivation of simple bending or so that m by I is equal to E by R is equal to sigma by Y, where m is bending moment, I is moment of inertia, E is Young's modulus, R radius of curvature, sigma bending stress, and Y distance of extreme fibers from neutral axis. So before deriving this derivation, there, there are some assumptions we have to consider. The assumptions for theory of simple bending are: first, first assumption is the material is assumed to be homogeneous, perfectly elastic and isotropic. Means जिस बीम जिस मटेरियल का बना हुआ है वो मटेरियल जो है वो होमोजीनियस होना चाहिए. होमोजीनियस का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम थ्रू आउट द लेंथ और स्पैन इज सेम. परफेक्टली इलास्टिक का मतलब हो गया कि आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड मटेरियल और बीम रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप. आइसोट्रॉपिक का मतलब हो गया कि इफ ए बॉडी हैविंग सेम प्रॉपर्टी और सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल थ्री डायरेक्शन इज कॉल्ड आइसोट्रॉपिक. सेकेंड assumption is the a transverse section of beam which is plane before bending will remain plane after bending. means means जो बीम का प्लेन क्रॉस सेक्शन है बेंडिंग होने से पहले, बिफोर बेंडिंग, वो जो प्लेन क्रॉस सेक्शन है वो बेंडिंग के बाद भी उसका क्रॉस सेक्शन प्लेन ही होगा, उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा. फॉर एग्जाम्पल से this is a beam and this is its plane cross section. Plane cross section. This is the cross section position before bending. After bending, after bending, when beam when beam deflect like this, when beam bend like this after application of load, see, this is the cross section plane before bending. It is a plane, but after bending, after the application of load or moment, when it bends,
beam bends, then after bending the cross section area is remain plane. It does not bend like this. Cross section area is not like this. Before bending, cross section area is plane, and after bending cross section area remains plane. There is no warping or bending in cross section plane. So this is the meaning of second assumptions. Third assumption is the radius of curvature of beam before bending is very large comparison to the transverse dimension of the beam. Means transverse dimension means width, depth, and radius of curvature. Say beam is straight, then its radius of curvature is very large. Radius of curvature of beam is very large. The third assumption is the radius of curvature of beam before bending is very large in comparison to the transverse dimension of the beam. बीम का रेडियस ऑफ कर्वेचर उसके ट्रांसवर्स डायमेंशन के रेस्पेक्ट में वेरी लार्ज यानी कि बहुत ज्यादा होना चाहिए. थर्ड, द फोर्थ assumption is material of the beam obeys Hooke's law. यानी कि मटेरियल जो बीम का है वो ओबेज हुक्स लॉ को ओबे करना चाहिए. हुक्स लॉ मींस स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट. मीन्स विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट मेंबर पर जो हम लोड लगाएंगे तो लोड उसके कारण जो स्ट्रेस डेवलप होगा दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. फोर्थ वन एंड नाउ फिफ्थ वन इज योंग्स मॉडुलस फॉर द मटेरियल इज सेम इन टेंशन एंड इन कंप्रेशन. मटेरियल का जो योंग्स मॉडुलस का जो वैल्यू होगा वो टेंशन एंड कंप्रेशन दोनों में योंग्स मॉडुलस का वैल्यू क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. दिस इज द assumptions. So these are the 5 assumptions. Now on the basis of these assumptions we will derive this derivation of pure bending. Say, consider a beam subjected to pure bending. Consider a beam subjected to pure bending means the beam subjected to only bending moment. There is no transverse shear force. Consider a beam subjected to pure bending. यहाँ हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि एक बीम सिंपली सपोर्टेड है जिसके ऊपर दोनों एंड पर मोमेंट लग रहा है और मोमेंट की इंटेंसिटी दोनों एंड पर मोमेंट की इंटेंसिटी सेम है. तो जब किसी बीम पर व्हेन ए बीम सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग, जब बीम पर प्योर बेंडिंग लगता है तो ड्यू टू प्योर बेंडिंग बीम जो होता है वो बेंट हो जाता है एज एन आर्क ऑफ ए सर्किल. वो सर्किल के आर्क की तरह बेंड हो जाता है. नाउ this is the position of beam before बेंडिंग यानी कि बेंडिंग मोमेंट अप्लाई करने से पहले ये बीम का पोजीशन है. तो यहाँ हम बीम के अपर फाइबर एक सेक्शन कंसीडर किए. यहाँ हम एक सेक्शन कंसीडर किए. इस सेक्शन का अपर फाइबर पर इस सेक्शन का लेंथ नाम दिए ए बी. बॉटम फाइबर पर इस सेक्शन का नाम दे रहे हैं सी डी. न्यूट्रल एक्सिस पे न्यूट्रल लेयर पर इस सेक्शन का लेंथ का नाम दे रहे हैं जी एच. न्यूट्रल एक्सिस से y डिस्टेंस पर एक लेयर कंसीडर कर रहे हैं जिस लेयर का लेंथ है EF. तो बिफोर एप्लीकेशन ऑफ लोड या बिफोर बेंडिंग लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ EF is equal to length of GH is equal to length of CD.
बेंडिंग से पहले सभी जो लेयर का जो लेंथ होगा बिटवीन दिस टू सेक्शन, जो लेंथ होगा वो सब बराबर होगा, यानी कि ए बी इज इक्वल लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ई एफ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ जी एच इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सी टी। हम यहाँ पिछले लेक्चर में हम क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि न्यूट्रल एक्सिस या न्यूट्रल लेयर का जो लेंथ होता है वो बिफोर बेंडिंग जो होता है, बेंड होने से पहले जो लेंथ होता है वही बेंड होने के बाद होता है। यानी कि न्यूट्रल लेयर पर जो हम कंसीडर कर रहे हैं लेंथ, दैट इज जी एच। तो ये जी एच फाइबर जो है ये कहाँ है, न्यूट्रल एक्सिस पे, न्यूट्रल एक्सिस पे। तो जी एच फाइबर का लेंथ वही होगा, बेंड होने से पहले जो लेंथ है बेंड होने के बाद भी उसका लेंथ वही होगा, इसके लेंथ में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ वही सेंटेंस में हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं। तो जी एच फाइबर हो गया। अब ये बिफोर बेंडिंग पोजीशन है, जब बेंडिंग यहाँ दोनों प्योर बेंडिंग में इस पर अप्लाई किया गया तो मेंबर जो है अब ये न्यू पोजीशन हो गया, जो बीम जो है वो बेंट हो गया जस्ट लाइक ए आर्क ऑफ ए सर्कल। तो अपर फाइबर पर जो हम कंसिडर किए थे ए बी, तो अब अपर फाइबर पर लेंथ हो गया ए डैश बी डैश। लोअर फाइबर पर लेंथ लिए थे हम सी डी, तो लोअर फाइबर पर हम नाम दे दिए सी डैश डी डैश। न्यूट्रल फाइबर पर जो लेंथ हम कंसिडर किए थे जी एच, तो इसका हम नाम दे दिए जी डैश एच डैश। न्यूट्रल फाइबर से वाई डिस्टेंस पर, न्यूट्रल फाइबर से वाई डिस्टेंस पर जो हम लेयर कंसिडर किए थे, यहाँ इसका नाम दिए थे हम ई एफ, तो यहाँ हो गया ई डैश, न्यू पोजिशन में हो गया ई डैश एफ डैश। अब ये जो सर्किल बना, ये सर्किल, इसको हम कंप्लीट आर्क ऑफ ए सर्किल को हम कंप्लीट सर्किल एज्यूम करके इसका कहीं सेंटर होगा, से सेंटर इज ओ सेंटर से इस सर्किल का रेडियल डिस्टेंस, न्यूट्रल एक्सिस का रेडियल डिस्टेंस से दिस इज आर। तो ये रेडियस हो गया आर। तो यहाँ से वाइड डिस्टेंस अबव पर था हमारा ई एफ फाइबर, तो ई एफ फाइबर का जो रेडियस हो जाए यहाँ से, ये डिस्टेंस जो था यहाँ से हम वाई डिस्टेंस पर लेकर चले थे कि ये डिस्टेंस है वाई। तो ये अगर रेडियल डिस्टेंस, ये रेडियल डिस्टेंस अगर न्यूट्रल एक्सिस का सेंटर से है आर, किसका, जी एच फाइबर का या जी डैश एच डैश फाइबर का, तो ई डैश एफ डैश फाइबर का रेडियल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर माइनस वाई। क्योंकि ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस जो है दैट इज वाई। तो ये रेडियस हो गया आर, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आर माइनस वाई। नाउ अब हम जानते हैं कि अगर किसी भी मेंबर का अगर या कोई आर्क है, कोई आर्क है, अगर से रेडियल डिस्टेंस है आर, रेडियल डिस्टेंस है आर और एंगल बना, एंगल है से थीटा, थीटा, तो ये सेगमेंट का जो लेंथ डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाए, होता है आर, एस इज इक्वल टू इस सेगमेंट का जो लेंथ होगा एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, आर इंटू थीटा। तो नाउ यहाँ अगर हम बात करें तो सेंटर से जी डैश एच डैश फाइबर का जो रेडियल डिस्टेंस है वो है आर। एंगल, यहाँ एंगल जो है दिस एंगल इज डी थीटा, तो जी डैश एच डैश का लेंथ कितना हो जाएगा, आर डी थीटा। इसी तरह से लेंथ ऑफ ई डैश एफ डैश, लेंथ ऑफ ई डैश एफ डैश फाइबर का जो लेंथ होगा, ये लेंथ क्या हो जाएगा, इसका रेडियल डिस्टेंस है आर माइनस वाई एंड एंगल है डी थीटा, तो ये जो आर्क होगा, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ई डैश एफ डैश इज इक्वल टू हो जाएगा आर माइनस वाई डी थीटा। तो लेंथ ऑफ जीएच फाइबर, लेंथ ऑफ जीएच फाइबर है आर डी थीटा एंड लेंथ ऑफ ई डैश एफ डैश फाइबर दैट इज आर माइनस वाई डी थीटा, आर माइनस वाई डी थीटा, आर माइनस वाई डी थीटा।
नाउ लेकिन हम जानते हैं कि लेंथ ऑफ जी डैश एच डैश इज इक्वल टू लेंथ ऑफ जी एच, क्योंकि जी एच फाइबर है न्यूट्रल एक्सिस पर, और न्यूट्रल एक्सिस का जो लेंथ होता है वो चेंज नहीं होता है। यानी कि लेंथ ऑफ जी डैश एच डैश इज इक्वल टू लेंथ ऑफ जी एच इज इक्वल टू आर डी थीटा। नाउ लेकिन तो इनिशियली लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ई एफ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ जी एच इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सी डी एंड दैट इक्वल टू आर डी थीटा। अब नाउ हम बात कर रहे हैं कि जी एच लॉन्गिट्यूडनल लेयर या लॉन्गिट्यूडनल फाइबर एट न्यूट्रल एक्सिस पर जो फाइबर हम ले जीएच फाइबर जो है जीएच फाइबर this GH fiber is at neutral axis. GH is equal to longitudinal layer at neutral axis. EF फाइबर कहाँ का हम ले रहे हैं? longitudinal fiber at a distance y from neutral axis. न्यूट्रल एक्सिस से y डिस्टेंस पर यहाँ जो हम दिखा रहे हैं ये न्यूट्रल एक्सिस से y डिस्टेंस पर जो हम फाइबर कंसीडर किए हैं, दैट फाइबर इज EF। तो EF कहाँ है? लॉन्गिट्यूडनल फाइबर एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। अब या नाउ बिफोर बेंडिंग से पहले एक बिफोर बेंडिंग कंडीशन है। बिफोर बेंडिंग लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ CD इज इक्वल टू लेंथ ऑफ EF इज इक्वल टू लेंथ ऑफ GH। यानी कि बिफोर बेंडिंग लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ EF इज इक्वल टू लेंथ ऑफ GH इज इक्वल टू लेंथ ऑफ CD। सबका लेंथ सेम होगा। नाउ नेक्स्ट लाइन इज GH फाइबर लेंथ डू नॉट चेंज। GH फाइबर का लेंथ चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि GH फाइबर जो है ये न्यूट्रल एक्सिस पर है, और हम पढ़ चुके हैं कि न्यूट्रल एक्सिस या न्यूट्रल लेयर का लेंथ कभी चेंज नहीं होता है। जो लेंथ बिफोर बेंडिंग होता है वही लेंथ आफ्टर बेंडिंग होता है। नाउ अब EF फाइबर कहाँ है? EF फाइबर जो है ये न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर है। तो जब बीम बेंड होगा तो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर जितने फाइबर है सभी फाइबर का जो लेंथ होगा वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। और न्यूट्रल एक्सिस या न्यूट्रल फाइबर के बिलो जितना लेयर होगा वो सभी लेयर का जो लेंथ है इंक्रीज होगा। तो नाउ से R is radius of curvature to fiber at neutral axis। R रेडियस ऑफ जो ये बीम कंप्लीट हम इसको सर्किल में कन्वर्ट की, इस आर्क को, ये जो आर्क बना था बीम का, इसको हम एक्सटेंड करके कंप्लीट सर्किल बना दिए। इसका कहीं सेंटर होगा दिस इज O से न्यूट्रल एक्सिस का जो रेडियल डिस्टेंस है दैट इज से R। तो यहाँ वही मेंशन है कि R इज रेडियस ऑफ कर्वेचर टू फाइबर एट न्यूट्रल एक्सिस। नाउ अब हम यहाँ फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि स्ट्रेन इन EF फाइबर, किस फाइबर में हम स्ट्रेन फाइंड आउट कर रहे हैं? EF फाइबर में। EF फाइबर कहाँ है? GH फाइबर यानी कि न्यूट्रल एक्सिस पर जो फाइबर है वहां से y डिस्टेंस अबव है। तो स्ट्रेन इन EF फाइबर, स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ स्ट्रेन इन EF फाइबर इज इक्वल टू डिक्रीज इन लेंथ ऑफ EF फाइबर बाय ओरिजिनल लेंथ ऑफ EF फाइबर। नाउ स्ट्रेन इज इक्वल टू डिक्रीज इन लेंथ और चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा? इनिशियल लेंथ माइनस फाइनल लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, यानी कि इनिशियल लेंथ दैट इज EF। तो यहाँ से इनिशियल लेंथ मेंबर का EF फाइबर का इनिशियल लेंथ कितना था? EF माइनस
फाइनल लेंथ कितना है, ई डैश एफ डैश, तो इनिशियल लेंथ ऑफ ई एफ फाइबर माइनस फाइनल लेंथ ऑफ ई एफ फाइबर बाई इनिशियल लेंथ ऑफ ई एफ फाइबर। अब नाउ स्ट्रेन इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ ऑफ ई एफ फाइबर। तो यहाँ हम ध्यान दे रहे हैं कि इनिशियल लेंथ ऑफ ई एफ फाइबर डायरेक्ट यहाँ हमको पता नहीं है कि इसका वैल्यू कितना है, लेकिन हम जानते हैं कि इनिशियल लेंथ ऑफ ई एफ फाइबर इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ ऑफ जी एच फाइबर, और हम ये भी जानते हैं कि जी एच फाइबर का लेंथ बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग इसका लेंथ चेंज नहीं होता है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको कि लेंथ ऑफ ई एफ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ जी एच इज इक्वल टू लेंथ ऑफ जी डैश एच डैश। तो लेंथ ऑफ जी डैश एच डैश हमको पता है ये कितना है, आर डी थीटा। तो लेंथ ऑफ जी डैश एच डैश इज इक्वल टू लेंथ ऑफ जी एच इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ई एफ इज इक्वल टू आर डी थीटा। तो यहां से इनिशियल लेंथ ऑफ ई एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ जी एच या लेंथ ऑफ जी डैश एच डैश माइनस फाइनल लेंथ ऑफ ई एफ। फाइनल लेंथ ऑफ ई एफ कितना है, ई डैश एफ डैश। तो ई डैश एफ डैश का जो लेंथ है ये कितना है, यहां से ये इसका रेडियल डिस्टेंस है आर माइनस वाई, एंगल है डी थीटा। तो ये जो डिस्टेंस होगा, लेंथ जो होगा ई डैश एफ डैश का, ये कितना हो जाएगा, आर माइनस वाई डी थीटा। तो इनिशियल लेंथ हो गया ई एफ का आर डी थीटा, फाइनल लेंथ हो गया आर माइनस वाई डी थीटा बाई इनिशियल लेंथ आर डी थीटा। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आर डी थीटा से आर डी थीटा से आर डी थीटा कैंसिल, यहाँ से कॉमन लेकर के कैंसिल हो जाएगा। जो बचेगा वो क्या बचेगा, वाई, यहाँ से डी थीटा कैंसिल, यहाँ से ये बचेगा, यहाँ से आर और यहाँ बचेगा वाई, ये कैंसिल हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या आ गया, स्ट्रेन इज इक्वल टू वाई बाई आर, यानी कि स्ट्रेन इसको जब सॉल्व करेंगे तो स्ट्रेन यानी कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू वाई बाई आर। इसका नाम दिए इक्वेशन नंबर 1। नाउ since since r is constant for given circle, radius is always constant. Here strain is equal to y by r. If r is constant, then strain is equal to y. Now यहाँ हम लोग वही बात करें कि since r is constant, then strain is directly proportional to y. मीन्स जैसे जैसे y का वैल्यू बढ़ते जाएगा, स्ट्रेन का वैल्यू जो है वो इंक्रीज होते जाएगा। मीन्स strain in any fiber is proportional to its distance y from neutral axis. Now, हम ये भी जानते हैं अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, या stress is equal to Young's modulus E into strain. This is say equation number 2. From equation 1 and 2, इक्वेशन 1 जो आया था कि स्ट्रेन इज इक्वल टू, इक्वेशन 1 जो था कि स्ट्रेन इज इक्वल टू y बाई आर, जो पिछले स्लाइड में था, स्ट्रेन इज इक्वल टू y बाई आर। अब ये स्ट्रेन का वैल्यू, स्ट्रेन इज इक्वल टू y बाई आर, जब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो स्ट्रेस इज इक्वल टू E इंटू वाई बाई आर, या हम
y को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे तो हम लिख सकते हैं कि सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू ई बाई आर से दिस इज इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। नाउ जो बीम है, जो बीम है यहाँ, इस बीम का हम एक क्रॉस सेक्शन प्लेन कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि हम 2D में देख रहे हैं। 3D, अगर हम 3D की बात करें तो 3D में ये बीम कुछ ऐसे दिखेगा, हम 2D पढ़ते हैं। तो यहां से हम बीम का एक क्रॉस सेक्शन प्लेन, इसको कट करके बीम का एक क्रॉस सेक्शन प्लेन कंसीडर कर रहे हैं। बीम का से दिस इज क्रॉस सेक्शन प्लेन, इसको हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। सी दिस इज द cross section plane of the beam. See, this is neutral axis, this is neutral axis। न्यूट्रल एक्सिस से y डिस्टेंस पर, न्यूट्रल एक्सिस से y डिस्टेंस पर एक एलिमेंटल एरिया हम कंसीडर कर रहे हैं, एक एलिमेंटल एरिया कंसीडर कर रहे हैं। इस एलिमेंटल एरिया का नाम दे रहे हैं हम से dA, dA। ना, अब इस एलिमेंटल एरिया की हम बात करेंगे कि इस एलिमेंटल एरिया पर हम अब एक एक करके फाइंड आउट करें कि स्ट्रेस ऑन एलिमेंटल एरिया, इस एलिमेंटल एरिया पर स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा। तो ये जो एलिमेंटल एरिया है ये न्यूट्रल एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर एज्यूम किए हैं, वाई डिस्टेंस पर। तो हम यहाँ से हम यहाँ देख चुके हैं कि सिग्मा स्ट्रेस का वैल्यू y डिस्टेंस पर क्या होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू वाई बाई आर। तो स्ट्रेस ऑन एलिमेंटल एरिया सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू वाई बाई आर। नाउ स्ट्रेस हमको y डिस्टेंस पर जो एलिमेंटल एरिया है पता चल गया, तो उस एलिमेंटल एरिया पर फोर्स कितना लगेगा। तो हम जानते हैं कि स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स बाई एरिया, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इनटू एरिया। तो यही हम बात करें कि फोर्स ऑन एलिमेंटल एरिया डीएफ इज इक्वल टू, तो डीएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस ऑन एलिमेंटल एरिया मल्टीप्लाई बाई एलिमेंटल एरिया, दैट इज डी। नाउ स्ट्रेस का वैल्यू, सिग्मा का वैल्यू हम जानते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू वाई बाई आर होता है, जो यहाँ निकाल चुके हैं। तो सिग्मा के जगह हमें वैल्यू पुट कर दे ई इंटू वाई बाई आर इंटू डी ए। नाउ अब एलिमेंटल एरिया पर हम फोर्स फाइंड आउट कर लिए, तो एलिमेंटल एरिया पर मोमेंट कितना होगा। तो मोमेंट ऑन एलिमेंटल एरिया डीएम इज इक्वल टू, मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इस एरिया पर जो फोर्स लग रहा है, इस एरिया पर जो फोर्स लग रहा है डीएफ, ये हम निकाल चुके। तो मोमेंट क्या हो जाएगा, ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है जो हम लेकर चल रहे हैं, y डिस्टेंस पर। तो मोमेंट क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज y। तो मोमेंट ऑन एलिमेंटल एरिया डीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन एलिमेंटल एरिया दैट इज डीएफ इनटू एरिया डिस्टेंस ऑफ एलिमेंटल एरिया फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, दैट इज y। नाउ तो मोमेंट इज इक्वल टू df इंटू वाई। df का वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं कि df इज इक्वल टू क्या है, ई वाई बाई आर इंटू डी ए। तो यहाँ से हम ई वाई स्क्वायर आर इंटू डी ए, यहाँ से y, ये ऑलरेडी y है, y में y मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो यहाँ ना हो dm इज इक्वल टू df इंटू वाई। df का ये वैल्यू हमको पता है, इसमें y मल्टीप्लाई कर दिए तो dm का वैल्यू ये आ गया। तो इस एलिमेंटल एरिया पर कितना मोमेंट लग रहा है ये हम लोगों ने अभी फाइंड आउट किया।
तो हम ये फाइंड आउट करें कि टोटल एरिया पर कितना मोमेंट लगेगा। तो टोटल एरिया पर मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो नाउ टोटल मोमेंट m इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dm। dm का वैल्यू यहाँ हम निकाल चुके हैं, dm का ये वैल्यू लेकर के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो नाउ m इज इक्वल टू, यहाँ आते हैं तो E इंटीग्रेट करेंगे तो E कांस्टेंट है, E को बाहर निकाल लिए, R कांस्टेंट है, R को बाहर निकाल लिए, तो यहाँ बचेगा क्या, इंटीग्रल ऑफ, यहाँ जो बचेगा इंटीग्रल ऑफ वाई स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी ए, वाई स्क्वायर इंटू डी ए, वाई स्क्वायर इंटू डी ए, दिस वाई square into d, integral of y square into dA. This y square into dA is called second moment of area, and second moment of area is called moment of inertia, जिसको हम I से इंडिकेट करते हैं। तो सेकेंड इंटीग्रल ऑफ सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया y स्क्वायर इंटू डी इज कॉल्ड सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, एंड सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम इंडिकेट करते हैं आई से। तो E कॉमन लेकर बाहर निकाल लिए, R कांस्टेंट है बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ y स्क्वायर इंटू डी इज सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, दैट इज I। इसके जगह पर हम लिखिए I। तो यहां से तो यहां से हमको मिला, तो यहां से हमको मिला कि m इज इक्वल टू ई इंटू आई बाई आर, या i को हम लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे तो लिख सकते हैं m बाई आई इज इक्वल टू ई बाई आर। से दिस इज इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 बोल रहा है कि m बाई आई इज इक्वल टू ई बाई आर। इक्वेशन नंबर 4 बोल रहा है कि सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू ई बाई आर। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 we can write m by I is equal to e by r is equal to sigma by y। ये डेरिवेशन आरजीपीवी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम चांस रहेगा कि आपके एग्जाम में ये डेरिवेशन आ सकता है। तो प्लीज बी रिमेंबर, प्रैक्टिस वंस। नाउ अब यहाँ हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बेंडिंग स्ट्रेस का अपने पास सिर्फ और सिर्फ इसी रिलेशन का हम यूज करेंगे। यही एक फॉर्मूला रहेगा, m बाई आई इज इक्वल टू ई बाई आर इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई। अब यहाँ जो सिमेट्रिकल बेंडिंग के केस में जो हम यहाँ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, स्ट्रेट बीम के केस में ऑलवेज यहाँ जो फॉर्मूला, ये डेरिवेशन हो गया, लेकिन जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे इसका और इसका यूज करेंगे। यहाँ 99.99% हम यहाँ इसका यूज नहीं करेंगे। यानी कि यहाँ जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला अपने लिए जो जरूरत होगा वो होगा m बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई। m बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई। ये इसका यूज हर जगह हम यहाँ करेंगे, क्योंकि ये डेरिवेशन बेंडिंग के लिए यूज होता है। तो अभी अपने सिलेबस में नहीं पढ़ना है, लेकिन आप टेक्स्ट बुक देखेंगे तो टेक्स्ट बुक में आपको एक टॉपिक मिलेगा कर्व्ड बीम। कर्व्ड बीम यानी कि वैसा मशीन एलिमेंट या कंपोनेंट जो लोड लगने से पहले ही वो कर्व है। जैसे पिस्टन रिंग लोड लगने से पहले ये सर्कुलर होता है, क्रेन हुक लोड लगने से पहले ही वो कर्व होता है। तो वैसे मेंबर जो कि लोड लगने से पहले ही वो कर्व पोजीशन में रहता है, तो वो उसका जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसके या डिजाइन करते हैं, तो उसके लिए हम चूंकि इसमें हमको रेडियस मिलता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलता है, तो उस केस में डिजाइन ऑफ कर्व बीम के जब हम करते हैं तो ई बाई आर का यूज वहाँ ऑलवेज होता है, वहाँ सबसे ज्यादा इसका यूज होता है। लेकिन यहाँ जो हम पढ़ेंगे
अपने सिलेबस में जो है सिंपल बेंडिंग, यूनिफॉर्म बेंडिंग ऑफ स्ट्रेट मेंबर नॉट कर्व मेंबर, तो यहाँ ऑलवेज हम यूज करेंगे इस रिलेशन का कि m बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई, जहाँ m क्या है बेंडिंग मोमेंट, i क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिग्मा क्या है बेंडिंग स्ट्रेस, y क्या है एक्सट्रीम फाइबर का डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से, या किसी भी फाइबर का डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। नाउ तो ये था डेरिवेशन। अब एक छोटा सा यहाँ टर्म यूज कर रहे हैं हम, सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस को इंडिकेट करते हैं जेड से। सेक्शन मॉडुलस इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू द एक्सट्रीम फाइबर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि मेंबर के सेक्शन मॉडुलस जेड इज इक्वल टू आई बाई वाई मैक्स, यानी कि मेंबर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू द न्यूट्रल एक्सिस से एक्सट्रीम फाइबर का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेक्शन मॉडुलस। तो सेक्शन मॉडुलस जेड इज इक्वल टू आई बाई वाई, यानी कि रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू द डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस इज कॉल्ड सेक्शन मॉडुलस। अब यहां से हम बात करें कि सिग्मा, हमको सिग्मा निकालना है, तो हम मेंबर की बात कर रहे हैं कि जो बीम था, या पिछले स्लाइड में चलते हैं यहाँ, तो हम पढ़ चुके हैं कि न्यूट्रल एक्सिस पर स्ट्रेस का वैल्यू क्या होता है, जीरो। जैसे जैसे हम न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, स्ट्रेस का जो वैल्यू है वो स्ट्रेस का वैल्यू इंक्रीज होते जाएगा, और जब हम अपर फाइबर पर पहुंचेंगे तो वहां जो स्ट्रेस का वैल्यू जो होगा मैक्सिमम होगा। अगर अपर फाइबर पर मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा तो लोअर फाइबर पर मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस होगा। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं कि जो बीम है, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ बेंडिंग अपर फाइबर में अगर कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हो रहा है तो लोअर फाइबर में टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा। तो न्यूट्रल एक्सिस से ये मान लेते हैं कि से ये है न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस तो न्यूट्रल एक्सिस पर स्ट्रेस का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू जीरो। एंड हम देख रहे हैं कि जो स्ट्रेस है सिग्मा जो है, सिग्मा इज इक्वल टू इस रिलेशन को हम लिख सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू एम वाई को हम इस साइड में भेज दें तो एम इंटू वाई बाई आई। तो किसी मेंबर पर जब हम मोमेंट अप्लाई कर दिए, तो मोमेंट मान लीजिए 5 न्यूटन मीटर का अप्लाई किए, तो एम का वैल्यू कांस्टेंट हो गया। आई का वैल्यू डिपेंड करता है कि उसका क्रॉस सेक्शन कैसा है। बीम फिक्स है, उसका क्रॉस सेक्शन जैसे अगर मान लीजिए रेक्टेंगुलर है तो बी डी क्यू बाई 12, आई का वैल्यू फिक्स हो गया। यानी कि बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा का जो वैल्यू होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, वाई के। और y क्या है, न्यूट्रल एक्सिस से किसी भी लेयर का डिस्टेंस, न्यूट्रल एक्सिस से किसी भी लेयर अबव एंड बिलो किसी भी लेयर का डिस्टेंस। तो जैसे जैसे y ऊपर की तरफ बढ़ेंगे या जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ेंगे, y का वैल्यू जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। y का वैल्यू अगर इंक्रीज होगा तो सिग्मा का वैल्यू जो है क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी कि सिग्मा बेंडिंग स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। ये y का जो वैल्यू है, y का वैल्यू अगर न्यूट्रल एक्सिस से हम आगे ऊपर की तरफ बढ़े तो y का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगा, अपर फाइबर के पास। तो यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ मिलेगा, अपर फाइबर पर। इसी तरह से न्यूट्रल एक्सिस के बिलो हम बढ़ना शुरू करें तो y का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगा, लोअर फाइबर के पास। यानी कि लोअर फाइबर पर स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम। तो
बेंडिंग स्ट्रेस की हम बात करें तो बेंडिंग में एक तरफ अगर टेंसाइल स्ट्रेस होगा तो दूसरे फाइबर पर क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस। जो अपना गिवन कंडीशन है, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लोड लग रहा है तो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस कहाँ लगेगा, अपर फाइबर पर। मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस कहाँ डेवलप होगा, लोअर फाइबर के पास। तो यहाँ ऑलवेज हम निकालते हैं दो स्ट्रेस। क्वेश्चन में आता है कि फाइंड मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस। तो अपर फाइबर पर मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस, तो लोअर फाइबर पर क्या होगा, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस। तो यही यहाँ हम नेक्स्ट स्लाइड में बात कर रहे हैं कि सिग्मा मैक्स। सिग्मा मैक्स मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस। सिग्मा मैक्स अपर फाइबर पर अगर कंप्रेसिव है तो लोअर फाइबर पर टेंसाइल होगा। तो यहां से सिग्मा मैक्स एट अपर फाइबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बाई आई इंटू वाई यू। वाई यू का मतलब न्यूट्रल एक्सिस से अपर फाइबर का डिस्टेंस, दैट इज वाई यू। Similarly, maximum bending stress at lower fiber, sigma max at lower fiber is equal to m by I into YL. YL क्या है, न्यूट्रल एक्सिस से लोअर फाइबर का डिस्टेंस। तो यहाँ अगर हमको स्ट्रेस निकालना है तो उसके लिए हमको m का वैल्यू, बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू पता होना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, एंड cg पता होना चाहिए कि cg डिस्टेंस कहाँ है। cg डिस्टेंस से हम अपर फाइबर का डिस्टेंस दैट इज वाई यू, cg डिस्टेंस से लोअर फाइबर का डिस्टेंस दैट इज वाई एल। तो अब यहाँ हम एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं। क्वेश्चन में कर रहा का बोल रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है कि टी बीम हैज द डायमेंशंस एज शोन इन फिगर, द बीम इज सब्जेक्टेड टू ए बेंडिंग मोमेंट ऑफ 5 न्यूटन मीटर। यहाँ बेंडिंग मोमेंट का m का वैल्यू डायरेक्ट दे दिया है। तो बोल रहा है कि डिटरमाइन मैक्सिमम टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेसेस इन द बीम। एक बोल रहा है कि एक बीम है जिसका क्रॉस सेक्शन जो है वो टी सेक्शन का है, यानी कि बीम कुछ इस टाइप से है, टी सेक्शन में। यहां से ये सपोर्ट हो गया, एक सपोर्ट यहाँ, एक सपोर्ट यहाँ। Yes. यानी कि जो बीम है, ये बीम है जिसका क्रॉस सेक्शन जस्ट लाइक ट्रेन की पटरी, आई सेक्स क्रॉस सेक्शन होता है, यहाँ ये टी सेक्शन है। बीम बोल रहा है कि बीम एक टी सेक्शन का है जिसका डायमेंशन दिया हुआ है, और बोल रहा है कि इस पर जो मोमेंट लग रहा है, मोमेंट जो लग रहा है, इस मोमेंट का मैग्नीट्यूड, इस मोमेंट का मैग्नीट्यूड है 500 न्यूटन मीटर, 500 न्यूटन मीटर। तो फाइंड मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस एंड मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस। इस मेंबर के कारण अपर फाइबर में कैसा स्ट्रेस डेवलप होगा, कंप्रेसिव। लोअर फाइबर में कैसा स्ट्रेस डेवलप होगा, टेंसाइल। तो यहाँ हमको स्ट्रेस निकालना है, यानी कि सिग्मा अगर हमको चाहिए तो सिग्मा के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, एम पता होना चाहिए, आई पता होना चाहिए, एंड वाई पता होना चाहिए। वाई मतलब कि सी जी डिस्टेंस से सेंट्रोइडल एक्सिस से अपर फाइबर का डिस्टेंस, अपर फाइबर का डिस्टेंस दैट इज वाई यू, वाई सफिक्स यू। सी जी डिस्टेंस से लोअर फाइबर का डिस्टेंस दैट इज वाई एल। तो जब हम इस फॉर्मूले में, ये जो फॉर्मूला है m बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई, इसमें y इज इक्वल टू हम वाई एल, वाई इज इक्वल टू वाई के जगह हम जब वाई एल सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये बताएगा लोअर फाइबर का स्ट्रेस। जब हम y के जगह वाई यू का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये बताएगा अपर फाइबर का स्ट्रेस। तो नाउ नाउ क्वेश्चन है कि एक बीम है जिसका क्रॉस सेक्शन है टी,
जिसमें डायमेंशन दिया हुआ है कि ये 200 mm है, ये 50 mm है, टोटल 150 है, ये इसका विड्थ 50 मिलीमीटर है, और मोमेंट जो लग रहा है 5 न्यूटन मीटर का लग रहा है। तो फाइंड मैक्सिमम टेंसाइल एंड मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेसेस इन द बीम। तो फाइंड आउट करने के लिए ऑलरेडी हम डेरिवेशन ड्राइव कर चुके हैं कि m बाई आई इज इक्वल टू ई बाई आर इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई। यहाँ हम ऑलवेज यूज करेंगे m बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई का, e बाई आर का यूज हम यहाँ नहीं करेंगे। तो नाउ हम लिख सकते हैं कि m बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई। क्वेश्चन में बोल रहा है कि मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस एंड मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस। मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस कहाँ डेवलप होगा? मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस अपर फाइबर में। मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस कहाँ डेवलप होगा? लोअर फाइबर में। तो अपर फाइबर के लिए सिग्मा सफिक्स यू कर दिए, लोअर फाइबर के लिए सिग्मा सफिक्स एल लिख रहे हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि m इज इक्वल टू 500 न्यूटन मीटर, यानी कि m का वैल्यू हमको गिवन है, सिग्मा का वैल्यू निकालना है। तो हमको जो एफर्ट लगाना होगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ i एंड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो यानी कि हमको फाइंड आउट करना है CG एंड हमको फाइंड आउट करना है MI। अब CG एंड MI का वैल्यू जब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ से निकल जाएगा स्ट्रेस, क्वेश्चन ओवर। तो हम CG कैसे निकालते हैं एंड MI कैसे निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये ऑलरेडी हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी यहाँ हम डिस्कस करें तो टी क्रॉस सेक्शन बीम का दिया हुआ था, तो इसको हम दो रेगुलर पार्ट में बांट दिए। इसका नाम दिए 1, इस हॉरिजॉन्टल जो मेंबर है इसका नाम दिए 2, यानी कि ये है फ्लैंज, ये है वेब। अब यहां से हमको बॉटम सरफेस पर रेफरेंस लाइन या रेफरेंस एक्सिस हम यहाँ एज्यूम कर लिए। अब सीजी निकालने के लिए, रेफरेंस लाइन से निकालने के लिए जो अपने पास फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वाई एल इज इक्वल टू, वाई एल मतलब लोअर फाइबर से, वाई एल मतलब लोअर फाइबर से यहाँ से सीजी का डिस्टेंस, यहाँ से लोअर फाइबर से सीजी का डिस्टेंस, दैट इज वाई एल। तो यहाँ हमको सीजी निकालना है, वाई एल निकालना है कि लोअर फाइबर पर हम रेफरेंस लाइन जो कंसीडर किए हैं, तो यहाँ से इसका सीजी कहाँ एक्ट करेगा, कहाँ एक्ट करेगा, यानी कि वाई एल का वैल्यू कितना होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो ये निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए वन वाई एल इज इक्वल टू A1 प्लस A2 Y2 बाई A1 प्लस A2। अब A1 यानी कि मेंबर वन का एरिया, मेंबर वन का एरिया मेंबर वन का एरिया, मेंबर वन कौन है, मेंबर वन ये है, दिस इज मेंबर वन। तो मेंबर वन का जो एरिया होगा, रेक्टेंगल है, एरिया क्या होता है, विड्थ इनटू डेप्थ या हाइट। विड्थ कितना है 50, हाइट कितना है 150। तो मेंबर वन का एरिया क्या हो जाएगा 150 इंटू 50, तो ये हो गया A1 इंटू वाई वन मतलब मेंबर वन का सीजी, यानी कि दैट इज इक्वल लोकल सीजी। तो मेंबर वन का टोटल जो हाइट है ये कितना है 150। तो इसका सीजी कहाँ एक्ट करेगा, हाफ पर, यानी कि 150/2, वाई वन क्या हो जाएगा 150/2, दैट इज 75, यहाँ हो गया 75। अब इसके बाद से A2 सेकेंड का एरिया, सेकेंड मेंबर भी कैसा है, रेक्टेंगल, एरिया क्या हो जाएगा यहाँ से विड्थ इंटू डेप्थ, यानी कि 200 इंटू 50। तो एरिया हो गया 200 इंटू 50 इंटू सेकेंड मेंबर का सीजी कहाँ से, रेफरेंस एक्सिस। तो यहाँ से टोटल ये विड्थ जो इसका डेप्थ है, ये डेप्थ कितना है 50, यानी कि इसका सीजी जो इंडिविजुअल एक्ट करेगा यहाँ से 25, यहाँ से 25। तो टोटल सीजी जो होगा ये 25 प्लस 150, यानी कि y2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये ऑलरेडी यहाँ तक है, ये यहाँ तक है 150 और प्लस 25, तो 150 प्लस 25 कितना हो गया y2 175।
तो y2 इज इक्वल टू 175 by A1 plus A2. Area of member 1 150 into 50, area of member 2 200 into 50. यहां से निकल गया वैल्यू ऑफ YL आया 132.14, यानी कि होल मेंबर का जो टी सेक्शन है इसका जो CG दैट इज कॉल्ड ग्लोबल CG ये एक्ट करेगा बॉटम सरफेस से कितने डिस्टेंस पर 132.14 मिलीमीटर डिस्टेंस पर। तो अपर फाइबर से ये अपर फाइबर से कितने डिस्टेंस पर एक्ट करेगा, तो हम जान देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ ये 150 प्लस 50 यानी कि टोटल अपर फाइबर से बॉटम फाइबर का डिस्टेंस कितना है 200, और सीजी जो एक्ट कर रहा है 132.14 मिलीमीटर पर। तो अपर फाइबर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा 200 माइनस 132.14, तो 200 में से 132.14 माइनस कर देंगे तो वायु आ जाएगा कितना 67.86। तो यहां से हम लोग फाइंड आउट कर लिए वाई यानी कि जो ग्लोबल सीजी होगा वो बॉटम फाइबर से 132.14 मिलीमीटर डिस्टेंस पर होगा, अपर फाइबर से वायु का वैल्यू 67.86 मिलीमीटर होगा। नाउ अब हमको फाइंड आउट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। YL का वैल्यू निकल गया, YU का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ से IXX हमको ये फाइंड आउट करना है। IXX निकालने के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, IXX इज इक्वल टू IX1 प्लस A1 Y1 बार का स्क्वायर प्लस IX2 प्लस A2 Y2 बार का स्क्वायर। अब यहाँ से ऑलरेडी हम देख चुके हैं IX1 यानी कि फर्स्ट मेंबर जो है कैसा है रेक्टेंगल का IX1 क्या हो जाएगा BD/12, B कितना है 50, D कितना है 150, तो यहाँ से B हो गया 50, DQ 150 का Q बाई 12 इंटू A1 फर्स्ट का एरिया कितना हो जाएगा 150 इंटू 50, तो यहाँ से हो गया 150 इंटू 50 इंटू Y1 बार का स्क्वायर। Y1 बार का मतलब ग्लोबल सीजी एंड मेंबर 1 का लोकल सीजी के बीच का डिफरेंस, यानी कि YL माइनस Y1। तो YL यहाँ से Y1 बार हमको निकालना है कि Y1 बार क्या होगा, तो Y1 बार क्या हो जाएगा Y1 बार YL माइनस Y1 या Y1 माइनस YL, किसी में से किसी को आप माइनस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ टर्म होता है स्क्वायर, तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि होल मेंबर का सीजी दैट इज ग्लोबल सीजी माइनस मेंबर 1 का सीजी दैट इज कॉल्ड Y1 बार। तो यहाँ से YL कितना है 132.14 और Y1 कितना है, Y1 यहाँ से दिया हुआ है 75, तो 132.15 में से वो 75 माइनस कर देंगे, 132.14 माइनस 75 इज इक्वल टू 57.14 मिलीमीटर। तो ये आ गया Y1 बार 57.14 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, प्लस IX2 क्या हो जाएगा रेक्टेंगल है तो BDQ/12, तो इसका विड्थ कितना है 200, D कितना है 50, तो ये हो गया 200 इंटू 50 का क्यूब बाई 12 प्लस, तो प्लस A2 सेकेंड का सेकेंड रेक्टेंगल एरिया क्या हो जाएगा 200 इंटू 50, तो एरिया हो गया 200 इंटू 50 इंटू Y2 बार का स्क्वायर। Y2 बार का स्क्वायर क्या होता है, बार मतलब डिफरेंस बिटवीन लोकल सीजी एंड ग्लोबल सीजी। तो यहाँ से अगर हम बात करें कहीं से आप बढ़ सकते हैं, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर हम अपर से बढ़े तो यहाँ से ये ग्लोबल सीजी कहाँ है 67.86 पर, और इसका जो लोकल सीजी होगा लोकल सीजी ये टोटल इसका डेप्थ है 50, तो सीजी कहाँ एक्ट करेगा 25, तो हम 67.86 माइनस 25 कर देंगे तो ये आ जाएगा 42.86 ऐसे भी निकाल सकते हैं, या हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि यहाँ से बॉटम से ही अगर मेजर करें, बॉटम से अगर हम मेजर करें तो बॉटम से Y2 कितने डिस्टेंस पर है 175 पर, YL कितने डिस्टेंस पर है 132.14 पर, तो 175 माइनस 32.14 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 42.86। तो आप चाहें तो
वाई यू -25 कर देंगे तो वही वैल्यू आएगा, या आप चाहें तो y2 - yl कर दें, वही वैल्यू आएगा, सेम वैल्यू आएगा। अपने को बस ध्यान रखना है कि y बार जो है ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल सीजी मतलब होल बीम का सीजी माइनस लोकल सीजी मतलब इंडिविजुअल मेंबर का सीजी। y1 बार अगर लेना है तो मेंबर 1 का सीजी ले लेंगे, y2 बार लेना है तो मेंबर 2 का सीजी यूज करेंगे। तो डिफरेंस बिटवीन लोकल सीजी एंड ग्लोबल सीजी इज कॉल्ड बार। नाउ अब इसको हम सॉल्व कर लिए, तो यहाँ से आ गया Ixx इज इक्वल टू 5900.3 इंटू 10⁴ मिलीमीटर पावर 4। तो यहाँ से हमने निकाल लिया, यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया वैल्यू ऑफ सीजी। हम यहाँ से निकाल लिए सीजी, हम यहाँ से वैल्यू यानी कि होल बीम का सीजी, ये हो गया न्यूट्रल एक्सिस या सेंट्रोइडल एक्सिस, दिस इज न्यूट्रल एक्सिस या सेंट्रोइडल एक्सिस, बोथ आर सेम फॉर स्ट्रेट बीम। तो सेंट्रोइडल एक्सिस से लोअर फाइबर का डिस्टेंस 132.14, सेंट्रोइडल एक्सिस से अपर फाइबर का डिस्टेंस हमने निकाल लिया 67.86। आई का वैल्यू हमने निकाल लिया 5900.3 इंटू 10⁴ मीटर पावर 4। अब हमको निकालना है स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस। तो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस कहाँ डेवलप होगा, अपर फाइबर पर। तो स्ट्रेस निकालने के लिए यहाँ अपने पास एक ही फॉर्मूला है कि सिग्मा इज इक्वल टू m बाई आई इंटू वाई या m इंटू वाई बाई आई। अब मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस हमको निकालना है, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस कहाँ डेवलप होगा, अपर फाइबर पर। तो अब यहाँ इस रिलेशन में y के जगह फॉर्मूला में y के जगह हम जब वायु सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वायु का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वो स्ट्रेस देगा अपर फाइबर का। जब हम इस y के जगह फॉर्मूला में y के जगह जब हम yl का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये लोअर फाइबर का स्ट्रेस देगा। तो इस तरह से मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालने के लिए y के जगह हम क्या पुट करेंगे, वायु। नाउ अब सिग्मा यू का मतलब स्ट्रेस एट अपर फाइबर का स्ट्रेस। तो अपर फाइबर सिग्मा यू इज इक्वल टू एम क्वेश्चन में दिया हुआ था 500 किलो न्यूटन मीटर, 10⁻³ मल्टीप्लाई कर दिए इनटू वायु का वैल्यू कितना दिया हो निकाले हैं 67.86, तो 67.86 बाई आई का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 5900.3 10⁴, तो वैल्यू यहाँ आई का सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो एम का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वायु का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, आई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो यहाँ से जो स्ट्रेस निकला है, स्ट्रेस कहाँ का स्ट्रेस होगा, अपर फाइबर का। अपर फाइबर में क्या होगा, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब हमको निकालना है मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस। मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस कहाँ डेवलप होगा, लोअर फाइबर पर। तो लोअर फाइबर का स्ट्रेस फॉर्मूला वही सिग्मा इज इक्वल टू m बाई आई इंटू वाई। अब जब y के जगह फॉर्मूला में y के जगह हम YL सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कहाँ का स्ट्रेस बताएगा, लोअर फाइबर का। YL का वैल्यू हम निकाल चुके हैं कि YL इज इक्वल टू 132.14। तो यहाँ से m इंटू YL बाई आई, m का वैल्यू 500 दिया हुआ है, YL का वैल्यू 132.14 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए बाई आई का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये आई का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो यहाँ से निकल गया स्ट्रेस इन मेगा पास्कल। तो ये स्ट्रेस दिया मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस, यहाँ से मिला मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस। तो जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस होगा वो अपर फाइबर्स या लोअर फाइबर में, अपर फाइबर में मैक्सिमम कंप्रेसिव, तो लोअर फाइबर में मैक्सिमम टेंसाइल। अगर लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो, अगर लोड अपवर्ड डायरेक्शन में अगर कहीं ऐसा होगा नहीं, लेकिन लोड अगर अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो उस केस में बॉटम फाइबर में मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस हो जाएगा, अपर फाइबर में मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस हो जाएगा। इस तरह से ये न्यूमेरिकल हम लोगों ने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्लास में फर्दर बेंडिंग स्ट्रेस का हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।